सोल हीलिंग फाउंडेशन एक ऐसा इंसानियत पसंद अदारा है जिसका मकसद ना सिर्फ ज़हनी सेहत के बारे में आगाही फराहम करना है, बल्कि इसमें मुशावरत, वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। इन सब के अलावा सोल हीलिंग फाउंडेशन माहिरीन नफ्सियात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशां है, ताकि माहिरीन नफ्सियात के लिए पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी को तश्कील दिया जा सके। इस अदारे में माहिरीन नफ्सियात अपनी रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन सब का मकसद दुनिया को रहने की ऐसी जगह बनाना है जहां इंसानों को ज़हनी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब मिल सके। और ये सब मुमकिन हो सका है मोहतरमा साजिदा काज़मी की बदौलत। वो इस अदारे की CEO होने के साथ साथ बहुत काबिल, होनहार और तजर्बाकार माहिर नफ्सियात भी हैं। उन्होंने भरपूर जोशो जज्बे के साथ सोल हीलिंग फाउंडेशन की बुनियाद बहुत नेक तमन्नाओं के साथ रखी है। Assalamu alaikum. I am Sibga Munir, a graduate psychologist. I welcome you all to the platform of Soul Healing Foundation. जैसा कि आप सबको पता है कि सोल हीलिंग फाउंडेशन का बेसिक मकसद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में मैसेज स्प्रेड करने के बारे में है। एक्चुअली इसका मकसद है कि ले मैन को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में पता चले। आप सबको पता है कि 10th अक्टूबर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे था। सोल हीलिंग फाउंडेशन विल बी सेलिब्रेटिंग अ होल मंथ ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। In this month, we'll be having different activities, most importantly, different awareness lectures. We will try to make it easy for a layman to understand mental health. जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये आज का इस सीरीज का चौथा सेशन है। इस सेशन में we will be just ending up our discussions. So we have the topic of importance of mental health. इसमें हम चीजें कवर करेंगे जैसे कि causes of mental illness, hurdles in seeking treatment, stigma related to mental health, myths and facts about mental health, challenges faced by youth, management of mental illnesses. इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ हमारी बहुत ही काबिल मैम साजिदा काज़मी मौजूद हैं। मैम साजिदा एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। शी is the founder and CEO of Soul Healing Foundation. Moreover, her expertise are in the field of psychotherapy and counseling, academics and research, psychometric assessment, personality development, and she's also a trainer and a speaker. आई होप कि हम इस सेशन में बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, मिथ्स को और डिफरेंट मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर सकेंगे। मैम साजिदा, आई एम वेरी थैंकफुल कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट द सेशन। Thank you, Sibka, and thank you for the audience for their participation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. To start with the name of Allah, the most beneficent, the merciful. So the most important message I'm going to give you: no one should feel ashamed to talk about mental health. Now, Mental Health Day is celebrated all around the world, and the Soul Healing Foundation is also celebrating not only the day, but the month of mental health awareness. And we had planned series of lectures and panel discussions in this regard. And this lecture is part of our awareness lecture. This is the last event. This year, theme set by the World Federation for Mental Health is Mental Health for Everyone and Everywhere. इस साल की जो थीम हमारी सिलेक्ट हुई है फ्रॉम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने की है कि मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन। सी, ये सबके लिए बहुत जरूरी है एंड एवरीवेयर, और हर जगह। बट वी ऑफ कोर्स वी हैव सो मेनी हर्डल्स कि ना हम सबको मेंटल हेल्थ दे सकते हैं और ना ही एवरीवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो मेंटल हेल्थ इज अ सोसाइटल इशू दैट कंसर्न्स ऑल ऑफ अस, and we need to aware people through education, lectures, public awareness messages, seminars, conferences, right? Because over 790 million people live with the mental health disorders. If not you personally, you probably know someone close to you who is struggling with their mental health. We need to make a change for the betterment of mental health in our society. Now, what is Mental Health Day? इसको थोड़ा सा we like to throw light on it.
World Mental Health Day is a public awareness observance day to raise the public's awareness about mental health issues that affect people all over the globe. It provides a platform with a united voice to give hope, connect people, and to empower communities to take action and create a longer lasting change. Why it's important? It also gives mental health workers, professionals, doctors, nurses, and other professionals a chance to dismiss mental health myths, reduce the stigma associated with mental health issues, and to help people recognize when they are or their friends and family members may need to seek treatment. The flexibility provides the capability of coping with stress factors which you experience in daily life, and also provides emotional well-being and inner strength which makes the person capable to adopt new changes in the life. The more you are flexible, the more adaptable you are to new changes. Physical health is one of the basic factors which plays essential part in mental health. It is noted that individuals who are suffering from any physical illness normally have low self-esteem and they could suffer from anxiety and depression too. कि अगर आप फिजिकली बीमार हैं तो डेफिनेटली आपकी जो सफरिंग्स हैं वो बढ़ जाती हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है एंड लाइकली चांसेस आर दैट यू मे सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज. On the other hand, the individual who are healthy and not suffering from any physical disease have high self-esteem, which helps them to enhance their mental health in a positive way. Social life and social support is very important part of mental health, which plays its vital role in describing mental health facts. The developed countries have made the social support groups in order to facilitate the individuals who have bad mental health. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें तो आई एम सो सॉरी कि ये चीजें अवेलेबल नहीं है, सोशल सपोर्ट्स ग्रुप नहीं है. लेकिन जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने नीड ऑफ टाइम जो मेंटल हेल्थ की जरूरत है उस पर फोकस के लिए उन्होंने सोशल सपोर्ट ग्रुप बनाए हुए हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं. So before moving further, it's very important to know what is mental health. World Mental Health Organization defined mental health as a state of well-being in which the individual realizes his own potentials, abilities, can cope with the normal stresses of life, can work effectively and fruitfully, and is able to overcome difficulties, our social connections, and our understanding of the world around us. बहुत जरूरी है हमारे लिए एक मेंटल हेल्थ के लिए कि हमारे अपने पोटेंशियल्स का पता हो, नॉर्मल स्टेटस ऑफ लाइफ क्या है और हमारी एबिलिटीज क्या हैं जो हम कोप अप कर सकें और हाउ टू लिव अ वेरी इफेक्टिव हेल्दी लाइफ. ठीक है. सो मेंटल हेल्थ इज कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल सोशल साइकोलॉजिकल वेलबींग. ये एक कॉम्बिनेशन है जज्बाती मौशरती और नफ्सियाती वेलबींग का which is effective function of an individual in the community. So mental state is healthy mental state is a key to a person's satisfaction in life. Mental health has the equal importance in our life just like physical health. A healthy mind is essential for healthy body, and the healthy body leads to the healthy mind. So both type of health are essential for each other. The disturbance in one domain leads to disturbance in another domain. कि definitely अगर आप एक चीज आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी. अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ में भी फर्क बहुत पड़ेगा कि यू विल बी हैविंग अ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, या आप परेशान होंगे तो आपकी सर में दर्द होगा, आपकी एक्स एंड पेन्स हो जाएंगी, आपकी बहुत सी बॉडी सिम्टम डेवलप हो जाएंगे. सो व्हाट इज मेंटल इलनेस? Mental illness is a psychological illness that causes disturbances in thinking, behavior or emotions. सबसे पहले मेंटल हेल्थ किस चीज को खराब करती है? हमारी सोच को, हमारे इमोशंस को नेगेटिव हो जाते हैं, एंड देन दे लीड टू नेगेटिव बिहेवियर एज वेल, abnormal behavior as well, that makes it difficult to cope with the ordinary demands of life. जब हमारे परेशान होंगे थिंकिंग बिहेवियर इमोशंस तो हमारी जो ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ हैं उन पे हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे. सो मेंटल इलनेस इज अ रिकग्नाइज्ड डायग्नोसिबल इलनेस that results in the significant impairment of an individual's cognitive and rational ability and social functioning. कि जब हम परेशान होते हैं बीमार होते हैं तो इतने रैशनल नहीं होते, हमारी जो एबिलिटीज होती हैं वो इतनी रैशनल नहीं होती, सोशल फंक्शनिंग हमारी एबनॉर्मल होती है. इट्स इंपॉर्टेंट टू अनकवर द कॉज
बहुत ज़रूरी है यहाँ पे फ़ोकस करना एज़ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कि हमारा ये काम बनता है प्रोफेशनल्स का कि हम देखें व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ दैट मेंटल इलनेस, ठीक है? ऑफ दिस डिज़ीज़ व्हिच कैन इंक्लूड जेनेटिक हो सकता है, पैथोलॉजिकल रिएक्शन पैटर्न, कि हमारा रिएक्शन पैटर्न टू एनी स्ट्रेस क्या है, आगे जाके मैं आपको मज़ीद डिफाइन करूँगी। पर्सनैलिटी हमारी क्या है, पुअर प्री-मॉर्बिड पर्सनैलिटी से मुराद कि हमारा स्ट्रेस से पहले पर्सनैलिटी क्या थी, या हमारे रिएक्शन पैटर्न पैथोलॉजिकल थे, यानी कि हम छोटी-छोटी बात पे ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, इसे पैथोलॉजिकल रिएक्शन पैटर्न कहा जाता है। या अगेन देन व्हिच लीड्स टू पुअर कोपिंग स्टाइल, कि हमारा कोपिंग स्टाइल कैसा है, एंड स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ एज वेल। जहाँ मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, साथ ही मेंटल इलनेस की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ क्या है। So good mental health is characterized by a person's ability to perform a number of basic functions and activities, including make the most use of your potential। पहले भी बात की कि आपके पोटेंशियल्स ठीक नहीं होंगे, उसका यूज मुनासिब नहीं होगा तो मेंटली सिक होंगे, लेकिन एक अच्छे हेल्दी इंसान के लिए उसके पोटेंशियल्स का बेहतर इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सो द एबिलिटी टू लर्न, the ability to feel, express and manage properly a range of positive and negative emotions। As human being हमारे definitely जज्बात positive भी होते हैं, negative भी होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हमें दुख भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं, but इनका appropriate इस्तेमाल at appropriate time makes us a normal human being। एंड व्हाट इज दैट, जब हमारा इनअप्रोप्रिएट इसका इस्तेमाल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल खुशी के मौके पे खुश होता है इंसान, और अगर कोई दुखी होके बैठ जाता है, आइसोलेट होके बैठ जाता है, रोने लग जाता है बिला वजह, तो डेफिनेटली लोग सोचेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड सिमिलरली लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हो जाती है, इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड टू नीड टू बी, कुछ लोग रो रहे होते हैं, इफ नॉट इट इज ग्लूमी होते हैं, और अगर वहां पे कोई कहके लगाना शुरू कर देता है, एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, दैट्स एबनॉर्मल बिहेवियर, इट डेविएट्स फ्रॉम अ नॉर्मेलिटी। उस पे लोग परेशान होते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, इस बंदा पागल तो नहीं है। ऑफ कोर्स डिसोसिएशन हो सकती है, डेफिनेटली डिसोसिएशन ही है, और एबनॉर्मेलिटी ये है कि आप उसको किसी के फौतगी पे आप हंसना शुरू कर देते हैं, या फॉर एग्जांपल डिफेंस मैकेनिज्म भी आ सकता है कि वी आर यूजिंग दैट, कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं रियलिटी को कर रहे हैं, तो दैट अगेन लाइज इन एबनॉर्मेलिटीज, दैट अगेन लाइज इन abnormal factors। So the ability to form and maintain good relationship with others, ये another important factor है, कि आपको एक तो पोटेंशियल का पता हो, उसका बेस्ट इस्तेमाल आता हो, अपने इमोशंस को आप अंडरस्टैंड करें, उनका प्रॉपर आप यूज करें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों के साथ अपनी मामूलात दुरुस्त रखें, अपने रिलेशनशिप अच्छे रखें, मुनासिब रखें, जो आपके नॉर्मलसी की तरफ इंडिकेट करता है। सो द एबिलिटी टू कोप एंड मैनेज चेंज एंड अनसर्टेनिटी, किसकी जिंदगी में अनसर्टेनिटी नहीं आती, ये चेंज नहीं आती, वी ऑल एज अ ह्यूमन बीइंग डू फेस और सफर अनसर्टेनिटी, हमारी जिंदगी में आ सकती है, और एक हेल्दी ह्यूमन, मेंटली हेल्दी ह्यूमन बीइंग उसको बड़े अच्छे तरीके से कोप अप कर जाएगा, टॉलरेट कर जाएगा, मैनेज कर जाएगा। बट अ वीक पर्सन, a person who is not mentally जिसकी वेलबींग अच्छी नहीं है, और वो क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, रोना धोना डाल देगा, और अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा, और जल्दी घबरा जाएगा, एंड लाइकली चांसेस क्या होगा, एंजाइटी और डिप्रेशन में लैंड करने का बहुत ज्यादा चांस है। सो cope with stressful life events, we do have problems, we do have stressful life events, और हमने इनको मैनेज करना होता है कैसे, with good emotional intelligence। हम इमोशनल तो हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, तो जब इसको कंबाइन किया जाता है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, टू रेगुलेट योर इमोशंस इन टाइम ऑफ डिस्टर्बेंस, कि आप जब परेशान हैं तो आप अपने जज्बात का ख्याल रखिए, उसके एक्सप्रेशन का ख्याल रखिए इंटेलिजेंटली, कि अब आपने इसको कैसे बिहेव, ऑफ कोर्स इट्स लिटिल डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, कि आप बहुत दुख में, बहुत गम में, आप सब्र का दामन मत छोड़िए, आप अच्छे तरीकों से चीजों को मैनेज करें। ऑफ कोर्स सम कुछ तो नेचुरल रिएक्शन होता है, वो आपने शो करना होता है, आप जरूर कीजिए, बट देन अगेन प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो इतना हो कि जितना मुनासिब है। अगेन अगेन यू हैव टू मैनेज योर डेली एक्टिविटीज, अगेन लाइक फॉर एग्जांपल किसी की मौत पे दुख है, तो ऑफ कोर्स दुख है, आपने एक दिन रोया, परेशान हुए, दो तीन, और दुख तो सारी जिंदगी नियर डील्स का रहता है, बट एबनॉर्मल इफ यू लीव योर सोशल फंक्शनिंग, आप जॉब है तो छोड़ गए, घर का काम है तो छोड़ गए, पढ़ाई तो छोड़ के बैठ गए, नो, यू हैव टू मूव ऑन। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं, तो आई थिंक अगेन अगेन आई से कि आपकी मेंटल हेल्थ इज एट रिस्क,
So play an effective role in your family, workplace, community, and among friends. Mental health is emotional health or well-being. It is just as important, as I already told you, as your physical health. So you have to look upon all these issues. नाउ होता क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ इन आर यूथ की बात होगी, नॉट ओनली यूथ बल्कि मैं आगे जाके बच्चों की भी बात करूंगी, और इट माइट इंक्लूड ऑल एज ग्रुप्स. तो स्टडीज हैव शोन दैट पेरेंटिंग स्टाइल, वन वेरी इंपॉर्टेंट पे आई वुड लाइक कि आज मुझे मौका और टाइम मिले तो मैं आपको इस पे डिटेल जरूर बताना चाहूंगी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लो सेल्फ स्टीम हमारी परेशान हमें करती है बहुत ज्यादा. ऑफ कोर्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि इफ यू हैव अ गुड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑल योर नीड्स आर मेट, तो आप मेंटली सेटिस्फाइड होंगे. बट अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स या क्या कहना चाहिए फाइनेंशियल नीड्स नहीं पूरी होती, तो हम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है. ठीक है. सो सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, दिस इज माई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ अटेंशन, कि हमारी शख्सियत ऑफ कोर्स वो प्रिंटिंग स्टाइल से रिलेट करेगी कि हमारा ब्रॉडअप कैसा था, हमारी शख्सियत कैसी है, कि हम उसको चीजों को कैसे मैनेज कर पाते हैं, नहीं कर पाते. देन अगेन ऑफ कोर्स रिलेटेड टू इट इज पैथोलॉजिकल पीयर ग्रुप. पैथोलॉजिकल पीयर ग्रुप, देखिए पीयर ग्रुप तो सभी का होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. बुरा मैं समझती हूँ कि ऑफ कोर्स अगर आपके दोस्त है बाप आपके साथ अच्छे नहीं है, दैट इज अ बैड कंपनी, तो आपको किसी गलत चीज की तरफ ले जाते हैं, तो वेरी वेरी लाइकली चांसेस कि हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ना अपने दोस्तों से, उनको फोकस भी कर रहे होते हैं, उनको आइडलाइज भी कर रहे होते हैं, उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं. और ऑफ कोर्स आप जरूर कीजिए, बट यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप किस किस्म के दोस्त बनाते हैं, क्या वो पढ़ाई में लायक हैं, नालायक हैं, आपकी सोशल क्या कहना चाहिए सिग्निफिकेंस उनकी है कि नहीं है, या आप उनके जो फैमिली बैकग्राउंड उनका क्या है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अपने हैबिट्स क्या है, वो खुद क्या कर रहे हैं, क्या वो क्लास बंकर्स हैं, क्या वो खुदा ना खास्ता इनटू ड्रग्स हैं, या किसी और चीज में. इसी पैथोलॉजिकल पीयर ग्रुप ही कहेंगे. तो मैं अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगी कि आई विश कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो खुदा ना खास्ता आपकी तरक्की की राह में रुकावट है. सो दिस ग्रुप हैव अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन यंग पर्सन्स मेंटल हेल्थ, कि वो उसको एक बुराई से दूसरी बुराई, झूठ बोलो यार, क्लास बंक कर दो, घर से निकल के जाते हैं, मूवी का प्लान बनाते हैं, डोंट टेल देम, विल बी ईटिंग समथिंग आउटसाइड एंड विल बी एंजॉयिंग. और अनफॉर्चुनेटली जो मैं और मैसेज देना चाहूंगी, यहाँ पे आपको बड़ा फैसिलिटेट भी करते हैं. ओके कोई मसला नहीं है, हम खा पी लेंगे, आई विल बी गोइंग टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली, और मैं आपकी जो नीड्स हैं गाड़ी में ले आऊंगा, आपको साथ ले जाऊंगा. बच्चे की बड़ी चूंकि वो सेंसिटिव एज होती है, तो बड़ा घर से इसको परमिशन नहीं मिल रही होती, तो बड़ा खुश होता है, यार मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, मुझे लेके जा रहा है, एंजॉय भी करा रहा है, ब्ला ब्ला ऑल दिस थिंग्स. वेरी नॉट वेरी गुड फॉर फर्दर. मैं जरूर बताऊंगी हाउ मेंटल हेल्थ में कैसे आपको खराबी पैदा करता है. अगेन देन साइकोलॉजिकल वार्मथ की बात है, which refers to an emotional climate in the family, कि अगर आपके खानदान में एक अच्छा वार्मथ, साइकोलॉजिकल वार्मथ नहीं है, लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि देन अगेन आप बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती हैं. और वो क्या है कि इट इंक्लूड्स सपोर्ट, काइंडनेस एंड अफेक्शन, बट लैक ऑफ साइकोलॉजिकल वार्मथ लीड्स टू मेंटल डिसऑर्डर, कि घर में हर वक्त गुस्सा, शोर शराबा, हंसना मुस्कुराना भी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली आगे जाके पेरेंटिंग स्टाइल की बात करूंगी तो उसमें फादर बड़े स्ट्रिक्ट है, मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, बस चुप खामोश पढ़ाइयाँ करो, कोई किसी से बात ना करे, ये मुस्कुरा किस खुशी में रहे हो. दिस इज वेरी स्मॉल थिंग्स. इसे कहते हैं कि साइकोलॉजिकल वार्मथ ही नहीं है, कि आप मुस्कुरा भी नहीं सकते, अपनी मर्जी का कोई काम भी नहीं कर सकते, विच लोज योर सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू इंडिविजुअल्स बिलीव इन देमसेल्फ, तो उसका अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है. This consistently been associated with positive mental health and well-being, कि हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्हीं बातों से रोक टोक ऑल टाइम हमें वो किया जाता है. और क्या मैं ऑफ कोर्स now comes a very important factor, that is parenting. Before moving to next, I would like to highlight the important topic, that is parenting. My so I'm talking about a very important topic, that is parenting. ठीक है. तो इसमें हम देखते हैं कि a good strong parenting give rise to a good mental health and a strong personality as well.
तो अभी आई जस्ट गो थ्रू कि हमारा टॉपिक माशाल्लाह काफी लंबा और बहुत सी चीजें हमें डिस्कस करने को है, लेकिन अगर मैं ये डिस्कस नहीं करूंगी तो शायद मैं मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी। सो देयरफॉर हम पहले भी डिस्कस किया, अगेन करना चाहूंगी बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको तो बड़ा अच्छा पता होगा कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या हैं। ऑल दोज हु आर न्यू इन दिस फील्ड, इसमें सॉरी मेरे लेक्चर में जो नए हैं, जो नॉन साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। We have four very important parenting styles, that is authoritarian, authoritative, neglectful and permissive. मैं यहाँ पे बात करूंगी अथॉरिटेरियन पेरेंट्स की, जो पीछे सेल्फ एस्टीम से रिलेट करने की कोशिश करूंगी। दे आर द पेरेंट्स who set the rules डिसाइड करते हैं by themselves, they don't explain to the बच्चों को नहीं एक्सप्लेन करते कि क्या है, और बस बना देते हैं और रीजन नहीं बताते, और बस यू हैव टू डू इट। और जब उनसे कहते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है, तो कहते हैं बस बिकॉज वी से सो। आई थिंक बच्चों को बड़ी रीजनिंग चाहिए होती है, तो आप हार्ड और फास्ट रूल्स बना देते हैं, उनको रीजनिंग नहीं देते हैं, और उनके टारगेट आप खुद सेट करते हैं, और अनरियलिस्टिक डिमांड्स आप की यहाँ पे होती हैं, जो अक्सर बच्चे मीट नहीं कर पा रहे होते, और देन उनको दे आर बीइंग स्कोल्डेड। तो यहाँ पे उनकी सेल्फ एस्टीम की जो मैंने बात की वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। वो ओबीडिएंट तो शायद होंगे आपके डर से, लेकिन वो डिस्टर्ब भी होंगे, वो परेशान भी होंगे, और वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी नीड्स, अपनी डिजायर। और आगे फर्दर लाइफ में अगर इसकी आप देखें कॉन्सिक्वेंसेस, तो बड़े ही डिजास्टर होंगे, बड़े डेंजरस होंगे। आई विश कि आई कुड, इफ आई हैव टाइम तो मैं सारा बता सकती हूँ, अनफॉर्चुनेटली वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं आई जस्ट बी गोइंग थ्रू। सो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज द सेकंड जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे मिलके रूल्स सेट करते हैं। पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं बेटा दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इसका आपको फायदा होगा, और ये चीजें आप करें। और बच्चे अपना उनको आजादी इजहार राय का भी मौका दिया जाता है कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, और उनकी बातों को वैल्यू किया जाता है। इससे उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, दे फील गुड, दे फील इम्पोर्टेंट, दे फील कि उनको एड्रेस किया जा रहा है, उनको जो है उनको तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, तो दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट। सॉरी मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। देन इज वेरी अनफॉर्चुनेट निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है, जो हमारे सॉरी टू से ना तो हम उनको टाइम दे रहे होते हैं, ना ही उनकी कोई डिमांड्स होती हैं, और ना ही वो कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और ना ही वो दे रहे होते हैं, और ना कुछ मांग रहे होते हैं। वेरी वेरी क्या कहना चाहिए, सबसे अगर मैं कहूँ कि पुअर पेरेंटिंग है तो निग्लेक्टफुल है, कि बच्चे का अच्छा बुरा कर रहे हैं तो ना उसको तारीफ अच्छाई पे कर रहे हैं, बुराई पे उसको मना भी नहीं कर रहे हैं, लेट देम गो व्हाटएवर दे डू। और वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं जल्दी से इसको बताना चाहूंगी, ये हमारे लाइकली चांसेस एंटी सोशल पर्सनालिटीज डेवलप हुए, कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप हुए, likely chances of the children or the youth to go to land into drugs, to land into theft, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल होंगे, बहुत ही अलार्मिंग ये सिचुएशन होती। They've been talked, बहुत इस पे बात भी हो सकती थी। So that would be fourth, permissive parenting। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसे डिस्कस करना चाहूंगी। ये वो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे की सारी नीड्स पूरी करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और डिमांड की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बड़ा मुस्कुराते हैं बच्चों की हरकतों पे, बड़े खुश हो रहे होते हैं। और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से अगर एग्जांपल दूँ, तो मैं पूछती हूँ कि जी आपके बच्चे लाडले हैं? तो कहते हैं हाँ, हाँ, बहुत लाडले हैं। कभी कोई काम वगैरह कराया तो नहीं, नहीं बहुत अभी तो छोटे। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो है उनको हर तरीके की इजाज़त दे रहे होते हैं, और ऐसे पेशेंट और सब कुछ करने की उनको परमिशन होती है, और ऐसे बच्चे बहुत डिमांडिंग होते हैं, बहुत अटेंशन सीकर भी होते हैं। So what they do is that they उनको मैं already I've told you कि मैरिज एडजस्टमेंट को बहुत उनको फेस करनी पड़ती है। लाइक यंग अडल्ट्स जब जाते हैं जॉब्स वगैरह में, तो वहाँ बड़े इमोशनल होते हैं कि जी व्हाई आर यू नॉट, मतलब कोई बात करते हैं तो कहते हैं मेरी बात मानी क्यों नहीं जा रही है। और इगोइस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं कि वो फौरन जो मैं कहूँ तो मेरी बात को सुना भी जाए, और अगर वो बात नहीं मानते तो आई एम गोइंग टू रिजाइन इट। वहाँ पे वो ईगो ये दिखा रहे होते हैं, नॉट सिर्फ वहां पे बल्कि एनीवेयर। शादियां जब हो जाती हैं बच्चों की, तो वहां पे भी इनको टेंशन सीकिंग का वो आदत पड़ी हुई होती है, और कुछ ना अच्छे काम करने की भी आदत पड़ी हुई होती है कि माँ बाप ने बड़ा लाड में पाला होता है। वहां पे इनको ये प्रॉब्लम ये होता है कि वहां पे जाके दोबारा उनकी मेल एडजस्टमेंट हो जाती है, बहुत से इश्यूज हो जाते हैं, जो लेटर ऑन लाइफ में उनको बहुत ज्यादा तंग कर रही होती है। सो अ गुड पेरेंटिंग लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज एंड गुड मेंटल हेल्थ। नाउ वुड बी गोइंग टू पेरेंटिंग के बाद हम जल्दी से विल पिक दी
कि प्रॉब्लम्स हमारे क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, बुलिंग है, टेम्पर टेंट्रम है, स्कूल इश्यूज हैं, रन अवे फ्रॉम स्कूल है, और इफ वी हैव अ टाइम तो होपफुली कि हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करें। और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है अगेन पेरेंटिंग में कि क्या चीज़ चल रही है, कि पेरेंट्स ने कैसा उनको पाला, कैसी उनकी तरबियत की, कि वो कुछ चीज़ों को फोकस कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सो challenges faced by young people and mental health in changing world, इस पे हम डिस्कस करेंगे। adolescent and the early years of adulthood is a time of life when many changes occur। एक जब हमारी एक अडल्ट की अर्ली अडल्टहुड होती है तो बहुत सी चेंजेस लाइफ में आ रहे होते हैं। क्या फॉर एग्जांपल चेंजिंग स्कूल्स टू न्यू इंस्टीट्यूशंस, लीविंग होम एंड स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी और अ न्यू जॉब। तो ये काफी हमारी जो है चेंज है। जिससे पहले कहा कि अनसर्टेनिटी को जो है हमें डील करना आना चाहिए, उसके साथ चेंज को हमें डील करना आना चाहिए। कई लोग, लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सम पीपल कैन नॉट फेस अ चेंज। यानी कि अगर एक उसका स्कूल भी चेंज, अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनका स्कूल जब चेंज होता है तो बड़े डिस्टर्ब होते हैं। वही मैंने इससे पहले बात की थी, पीछे बहुत लाडले, पीछे बहुत अटेंशन, तो नए स्कूल में एडजस्ट नहीं होते। या फॉर एग्जांपल वो यूनिवर्सिटी लाइफ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो जाता है कि वो वहाँ पे आर देर अनएबल टू क्या कहना चाहिए, मैनेज थिंग्स। सो फॉर मेनी दीज आर द एक्साइटिंग टाइम। खुशी के तो बड़ा ये कहते हैं बड़ा एक्साइटिंग टाइम टाइम है। और कुछ के लिए क्या होता है कि वो परेशान हो जाते हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी टाइम्स ऑफ स्ट्रेस एंड एप्रीहेंशन एज वेल। सो however in some cases if not recognized and managed, these feeling can lead to mental health। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम चीजों को रियलाइज ना करें, रिकग्नाइज ना करें, तो हम डेफिनेटली परेशान हो सकते हैं, राइट? सो हमारी मेंटल हेल्थ इन चीजों से डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होती है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि थर्ड डेमोग्राफिक फैक्टर इज जेंडर एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये भी हमारी मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन जनरल वुमेन हैव बीन फाउंड टू हैव पुअर मेंटल हेल्थ देन मेन। क्यों? कि अक्सर खवातीन बड़ी नाजुक मिजाज होती हैं, सिनफ नाजुक भी इनको कहा जाता है, सेंसिटिव भी होती हैं, वन थिंग। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस भी होती हैं, ठीक है, और वो सारी चीजों को खुद ही मैनेज। और जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली के उनके और बहुत से इश्यूज होते हैं, हस्बैंड जो है कोऑपरेटिव नहीं होता, बच्चे उनकी बात फॉर एग्जांपल नहीं सुन मान रहे होते, वो भी चीजें इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। So it is evident, however, that in developing countries, the influence of socioeconomic status on mental health and well-being is much greater than in more developed countries. Because definitely, poverty and unemployment had played a vital role in increasing the disturbance of the people. कि आप हमारे मुल्क में देखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात गुर्बत के साथ साथ व्हाट डू वी हैव, कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी है। एक तो नौकरी भी नहीं लोगों को मिलती, कोई रोजगार भी नहीं है, गुर्बत भी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये दोनों फैक्टर क्या इतने इंपॉर्टेंट नहीं है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगेन हमारी फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल नीड्स जुड़ी हुई होती हैं इन चीजों के साथ, वो पूरी नहीं हो रही होती, ठीक है। तो जब इंसान अपने ख्वाबों को पूरा होता नहीं देखता, खैर ख्वाब तो एक अलग बात है, अपनी जरूरतों को पूरा होता हुआ नहीं देखता, बहुत परेशान होता है, कई दफा जिंदगी में मरता है, कई दफा जीता है। एंड ऑफ कोर्स देन अगेन लैंड टू मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। वो परेशान होके फाइट कर करके लड़ लड़ के इतना परेशान होते हैं, वो बहुत वेरी लाइकली चांसेस कि वो डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ मूव कर सकता है। सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अगेन एज अर्लियर आई सेड, पर्सनैलिटी जो हम डेवलप पेरेंट्स करते हैं। कोई तो डिपेंडेंट होते हैं, कोई पैरानॉइड होते हैं, कोई ऑब्सेस्ड होते हैं। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पर्सनैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉट अप, ये प्रिंटिंग स्टाइल में बता चुकी हूँ कि ब्रॉट अप बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसा हम ब्रॉट अप होगा हमारा, अगर बुरा गलत ब्रॉट अप होगा, अच्छा ब्रॉट अप नहीं होगा, तो डेफिनेटली अगेन बच्चा बहुत से प्रॉब्लम में लैंड करेगा। और ना सिर्फ प्रॉब्लम में लैंड करेगा, मेंटल डिसऑर्डर में लैंड। बर्थ ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद पहले जिक्र किया, दोबारा मैं जिक्र करना चाहूंगी। ओनली चाइल्ड, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, अकलौता बच्चा, ठीक है। ये इन इन बच्चों को बहुत अटेंशन की दफा ज्यादा मिल रही होती है, और वो उन बहुत सी चीजों को इग्नोर किया जा रहा होता है ब्रॉटअप के सीन में। रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा होती है, ओवर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होती है। द रोल ऑफ सोशल मीडिया, इंशाल्लाह इसके ऊपर तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव टॉक करूंगी इसी ही होपफुली सेशन में। तो देन यूज ऑफ मोबाइल, नाइट पैकेजेस, इस पे भी बात होगी। रिलेशनशिप issues with lot of very good examples from my clinical practice. हाँ, then another very important thing, comparison by the teacher and the parents, वही
बच्चों के मुकाबले कर रहे होते हैं कि तुम तो अच्छे नहीं हो, फलां तो बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, उसका तो मैथ्स बहुत अच्छा है, तुम्हारा तो ये नहीं है। एवरी पर्सन इज नॉट हैविंग सेम क्वालिटीज। हर बच्चे में एक किस्म की नई चीजें होती हैं, डिफरेंट किसी और चीज में एक्सेल कर सकता है। लेकिन अ वेरी अनफॉर्चुनेट ओवर हियर बाय द टीचर एंड एज वेल एज द पेरेंट्स बायसेस, वेरी अनफॉर्चुनेट। मर्जी हमें पसंद कर रहे होते हैं, बच्चों को नहीं कर, पेरेंट्स भी करते हैं। ये मेरी बड़ी अलार्मिंग और हैरानकुन बात है कि क्या टीचर तो चले करते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स भी करते हैं? ये मेरा अच्छा बच्चा, ये मेरा गंदा बच्चा, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो मेरी सारी बातें मानते हैं। देखिए अगेन, एवरी पर्सन इज यूनिक। आपने पता नहीं, हो सकता है उस बच्चे को बहुत लाड प्यार दिया हो, बहुत अच्छा पाला हो, तो आपका बड़ा अच्छा बच्चा, और एक को आपने बड़ा निग्लेक्ट किया हो। ग्रजेस, टीचर्स ग्रजेस पैदा कर लेते हैं, जो बड़ी हैरानकुन बात है। और उसके बच्चों से बदले ले रहे होते हैं, उनके मार्क्स कम देने की। ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स विद द टीचर एंड पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक नेगेटिव इवेंट, सॉरी, एक नेगेटिव कमेंट जो है आपके बच्चे की जिंदगी तबाह कर रहा होता है। So you have to be very much careful while talking to a child, talking to a person, कि आपके मुंह से ऐसा कोई लफ्ज ना निकले, लाइक आप कहेंगे तुम तो हो ही ना कम में, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। So the increasing use of social media, while undoubtedly bring many benefits, can also bring additional pressures, as connectivity to network at any time of the day and night is quite easy. लाइक सारी रात लंबी बात, बहुत से लोगों को पता होगा कि हमारे ऐसे पैकेजेस भी हैं, बहुत सस्ते पैकेजेस भी हैं। और वेरी अनफॉर्चुनेट अगेन ओवर हियर कि इतना सस्ता होता है और ऑल टाइम अवेलेबल होता है, और बच्चों को तो चूंकि पता नहीं होता। आई बी टॉकिंग इन डिटेल कि क्या होना चाहिए, वो उसमें चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं, नेगेटिव चीजों में, और ये बहुत ही ले जाता है आपको आगे खराबी की तरफ। और अगेन, क्योंकि हमारे पास तो पेशेंट जब आता है ना, जब वो मेंटल डिसऑर्डर में लैंड कर जाता है। ठीक है, तो मेरा एक और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि मोबाइल का ज्यादा यूज तो नहीं करते? अगेन माएँ वो बड़ी हँस, हाँ, वो तो आज हर कोई कर रहा है, मेरे बच्चे बिल्कुल जी करते हैं, हँस-हँस के बता रहे। जब आगे पता चलता है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए हैं। सो यंग पीपल लिविंग इन सच सिचुएशंस, दे आर particularly exposed to mental illness and disorders. Now, again, misuse of smartphone in students and children. Smartphone addiction is becoming a big problem. 87% of the young adults say that the smartphone never leave their side. ऐसा ही होता है ना हमारे इर्द गिर्द। While 80% of the smartphone users check their phone within 15 minutes, हमारे 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, उससे अर्ली भी लोग खोल रहे होते हैं वेकअप टाइम पे। और देयर आर सम साइंस ऑफ मोबाइल एडिक्शन भी है, मैं आपको डिस्कस करूंगी। frequent use of phone at meal time, spend more time on phone than interacting with others, कि किसी से नहीं बात कर, इर्द गिर्द आपके बड़े नियर डियर बैठे होते हैं, आप अपने मोबाइल पे टक 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 लगे होते हैं। ठीक है, ये एक बंदे की बात नहीं, कि अब तो इतना कॉमन हो चुका है। frequent use of smartphone while performing tasks, they require focus, for example completing, आप असाइनमेंट कर रहे होते हो तो आपका जी वो हेडफोन लगा है और आप उसमें मोबाइल फोन का यूज करें, जी मैं तो उस पे म्यूजिक सुन रहा हूँ या कुछ भी है। ड्राइविंग में टाइम एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग उसमें फोकस नहीं कर रहे होते, अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। सो फील अनकंफर्टेबल व्हेन योर, और ऐसा क्या महसूस करते हैं कि व्हेन योर फोन इजंट विद यू, कि ना जाने कुछ चीज की खो चुकी है। सो समटाइम्स यू चेक योर फोन इन द मिडल ऑफ द नाइट, ये मुझे नहीं समझ आती कि आधी रात को लोग खोल के देख रहे होते हैं। सो यूसेज ऑफ स्मार्टफोन बिकम्स अ मोर सीरियस प्रॉब्लम व्हेन इट इज इन द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन। बड़ों की बात तो होगी ना, अब हम बच्चों की बात करते हैं कि कितना नुकसान होता है एंड ओवरली यूज बाय स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, डेफिनेटली उनकी जो एजुकेशनल एरिया है बड़ा वीक हो जाता है। कॉजेज अगेन कम टू अगेन कॉजेज, पुअर पेरेंटिंग। Parents have no proper check and control over their children and their smartphone usage. They provide them with free access of personal smartphone and tablets without any parental check and balance, which leads to dangerous results and use of uncensored content in the children especially. तो देखिए ना, आपने बच्चों को जी सबके पास अपना-अपना मोबाइल है, और वो एक्सेस भी है, कनेक्टिविटी भी है, और वो ऐसा भी कंटेंट देख रहे होते हैं, ऐसे वीडियोज़ देख रहे होते हैं, जो उनकी एज एप्रोप्रिएट नहीं होती। बच्चे जल्दी मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स और आपको पता है कि इंसान के अंदर अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी की तरफ जाने का रुझान ज़्यादा होता है। दे स्टार्ट फॉलोइंग इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, डेफिनिटली मेंटल रिटार्डेशन की बड़ी रिसर्चेज़ हैं कि उसमें डेवलप हो जाती हैं, बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, आई साइट वीक हो जाती है। अगेन पीयर प्रेशर की बात है। चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स, यूज स्मार्टफोन एंड ड्रग्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप। जी मेरे दोस्त भी तो यूज कर रहे हैं, और मेरे दोस्त ही सारे काम, उनके पास भी तो मोबाइल है, उनके मामा पापा तो उनको नहीं रोकते। स्टेटस सिंबल,
for everyone more than a necessity of life कि जी ये तो होना, वो कहते हैं खाना हमें मत दें, मोबाइल हमसे, बल्कि सॉरी मैं मज़ीद डिस्कस करना चाहूँगी। जब पेरेंट्स ने कई दफ़ा उनसे लिया मोबाइल तो बच्चों ने क्या करने की कोशिश की थी, ट्राई टू कमिट सुसाइड एज़ वेल, कि पूछा क्या मेरे अम्मा-अब्बा ने मुझसे मोबाइल ले लिया। अब वो इतने एडिक्ट हो चुके होते हैं, वो इतना एक्सेसिव यूज़ कर रहे होते हैं, दे बिकम इनटू अ रिलेशनशिप इश्यूज़, उसमें वो पहुँच चुके होते हैं और ना जाने कहाँ तक उनके हालात। अब पेरेंट्स को होश आता है, अब पेरेंट्स को ख़्याल आता है, वो स्विच करवाते हैं जी मोबाइल उनसे, जस्ट सडनली अब्रप्टली ले लेते हैं। तो क्या है? सबा की एडिशन का ना विथड्रॉल सिम्पटम होते हैं, तो इसके भी विथड्रॉल सिम्पटम होते हैं। तो बच्चा डिप्रेस, एंग्शियस, सुसाइड, सेल्फ हार्म और बहुत से नुकसानात। आई विश आई हैव अ टाइम तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा बात। सो मैनेजमेंट क्या है? डोंट गिव मोबाइल फोन व्हेन अ चाइल्ड इज अंडर 14 इयर्स। ये बड़ा एहतियात करना पड़ेगा। एंड इफ यू गिव तो क्या करना चाहिए? आपको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। Teaching about safe use of the internet and social media should be provided. Like the people must be taught to keep personal information private, not post any image, comment, or information which could be harmful to them or to others. So क्या है जी, हम वेरी अनफॉर्चुनेट, हम लोग क्या करते हैं, कोई कुछ भी कर लिया, फौरन हम स्टेटस लगाया, फौरन हमने फेसबुक पे चढ़ा दिया, इंस्टाग्राम पे लगा दिया। एडिक्शन है, फौरन करने। बहुत प्राइवेट मैटर्स को मैं बड़ी हैरान होकर देख रही थी कि वो सोशल मीडिया पे उनके चल रही होती थी। देखिए, आपने एक और बात बताना चाहूंगी जो आपके लिए अनहेल्दी भी है और अनसेफ भी है। आप नहीं जा रहे, गोइंग टू अ पार्टी, आपने स्टेटस लगाया और ऐसे बड़े एविडेंसेस मिले हैं कि किसी ने भी पढ़ा, चोरों के भी तो आखिर अकाउंट्स होते हैं, वो जाके आपकी अच्छा लोकेशन भी आप लोग लगाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, रादर इंटरेस्टिंग से ज़्यादा तो पेनफुल बात है, डिस्टर्बिंग बात है कि आप ना लोकेशन भी लगाते हैं, गोइंग टू फलां, और सारे जा रहे हैं, और ये वो हमको पता है जी घर से इतने दूर, चोरियां, डाके, बहुत से नुकसान। करना हमें क्या चाहिए? टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, यू डोंट नीड टू नो राइट अवे इफ समवन लाइक्स और योर स्टेटस अपडेट, फॉलो यू और इंस्टा। लेकिन ये तो एडिक्शन है ना, कितने लोगों ने लाइक किया, कितनों ने हम पे कमेंट किया, और कितने जो है हमें फॉलो करें। द ओनली ऐप फॉर यू विच यू डोंट टर्न ऑफ इज नोटिफिकेशन माइट बी योर टेक्स्ट मैसेज, वो आप ऑन रखें, आपका इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज बिकॉज समटाइम यू आर अर्जेंटली वेटिंग फॉर अ टेक्स्ट, और योर कैलेंडर ऐप जो आप रखें नोटिफिकेशन टू कीप यू स्केड्यूल। लेकिन इससे ज्यादा मैं समझती हूँ कि यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। सो सेट स्पेसिफिक बाउंड्रीज फॉर स्मार्टफोन यूजेस, reply to text message just 3 times a day. अपने ऊपर आप थोड़ा सा चेक रखें ना, ठीक है? Apart from urgent text messages from family and close friends, don't reply immediately, ठीक है? Turn off your phone before going to bed. मैंने देखा रात को भी लोग नहीं करते, रात ही को तो रादर नहीं करते। And leave it to charge outside your bedroom, कि जरा आपको पहुंचने में मुश्किल हो है। It can be tempting to use your phone in the middle of the night, but you won't if it takes too much effort to even get to your phone. तो आप अगर दूर रखेंगे तो आपकी एफर्ट होगी, एफर्ट से तो इंसान वैसे ही थोड़ा सा लेजी होता है, नहीं करता। बिफोर यू स्टार्ट वर्क, पुट योर फोन एट लीस्ट 10 feet away from you. Wear a watch so you don't need to check your phone for the time. Lock your phone with an annoyingly password की, वो भी एक कहते हैं ना नेगेटिव reinforcement है कि आप ना करें. Now, what you can do to help suffering individuals and how to accept people with mental disorders. Showing mentally sick people respect and acceptance remove a significant barrier to successfully coping with their illness. Having people see you as an individual and not as your illness. आप उसको एक इंसान के तौर पे देखें, बीमारी के तौर पे ना देखें। क्यों? Can make the biggest difference for someone who is struggling with the mental health. Advocating with our circles of influence help ensure these individuals have the same rights and opportunities as the other member of the group or the society. कि जो mentally sick हैं, आपने को acceptance देनी है, respect देनी है, मजाक नहीं उड़ाना. Learning more about mental health allows us to provide helpful support to those affected in our families and communities. अगर आप जितना ज्यादा लर्न करेंगे मेंटल इलनेस के बारे में, लाइकली चांसेस कि आप उनको घर में ही बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ है, इलनेस हैं, जो कि हमें हर्डल्स होते हैं मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट सीख करने में। क्या है? मेंटल हेल्थ इलनेस had always been most controversial and important topics in the society. क्यों? We're surrounded by it, whether we know it or not. हमें पता हो या पता ना हो, हम मेंटल इलनेस से सराउंड, हमें इर्द गिर्द हमारे होती है। क्या रीजन? हमें परेशान कुन वजूहात क्या है? हर्डल्स हमारी, स्टिग्मा. However, only half of those affected receive treatment
often. क्यों? Because of the stigma attached to the mental health. This is a very sad truth, because like any other disease, there is a treatment for the mental illness. A considerate amount of people, after getting the required treatment, get better. On the other hand, untreated mental illness can contribute to poorer performance at school and work, fewer employment opportunities, and increased risk of suicide. अगर हम अपना इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्वेट डिप्रेशन, एंजाइटी, एंड देन उसके बाद अल्लाह माफ करे सुसाइड को भी हम लीड कर सकते हैं. नाउ stereotypes related to mental illness, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. होता क्या है stereotype? It is a fixed over generalized belief about a particular group or a class. पाकिस्तान क्या है? मेंटल इलनेस इज स्टीरियोटाइप एज मैडनेस. क्या कहते हैं? ये तो पागल है. ठीक है. एंड दिस इज स्टीरियोटाइप व्हिच हिंडर्स अस फॉर सीकिंग मेंटल ट्रीटमेंट. क्यों? मतलब कि कोई चला जाए मेंटल इलनेस के साथ तो ये तो पागल है, और पागल का स्टिग्मा का टैग कोई लगवाना पसंद नहीं करता. अ वेरी कॉमन स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग मेंटल इलनेस इज he she person with mental illness is possessed by क्या? सुपर नेचुरल, इनके जादू के ऊपर होता है. ये है आगे में जाके बात, जिन इन पे आ गए. ठीक है. वो कहते हैं कि ये शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसको समझा ही नहीं मेंटल इलनेस चाहता, और अगर ऐसा हो जाए तो कहते हैं कि ये तो इनके ऊपर जिन चढ़ गया है, और इनको पीरों फकीरों के पास ले जाएं, तावीज़ गंडे वगैरह शुरू कर दिए जाएं, तो फिर भी ये हिंड्रेंस है, फिर भी ये प्रॉब्लम है. और वी नीड टू नो कि ये मेंटल इलनेस है, इसका जिन के साथ इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, ये हमारी सिर्फ थॉट्स हैं. देन अगेन अनदर इम्पोर्टेंट, मेडिसिन कल्चर. हम तो कहते हैं ना, सॉरी अगर हम मेंटल ट्रीटमेंट की बात यहाँ पे करें, ये साइकोथेरेपी क्यों नहीं दी जाती, उनके इश्यूज को क्यों नहीं डिस्कस किया जाता, तो उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस हमें पता नहीं होता. मेडिसिन कल्चर है कि आप जब मेरे पास ये पेशेंट आते हैं, डिटेल थेरेपी मैं करती हूँ, तो कहते हैं आपने डॉक्टर साहब दवाई लिखी है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि आई डोंट गिव मेडिसिन बिकॉज आई एम अ थेरेपिस्ट. तो मैं कहती हूँ नहीं, आपका इलाज जो है वो गुफ्तगू है. लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी, कि ये लोग हमारी एक्सेप्टेंस की बात है, क्योंकि कहते हैं अच्छा बातचीत से इलाज होता है, तो उनको नहीं पता होता कि ये क्या इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो रोल ऑफ फेथ हीलर यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाता है. रिजिड बिलीफ्स हमारे आ जाते हैं, काला जादू. और बिलीव यू मी, जो काला जादू की कहानी है, वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी. काले जादू की चीजें चल पड़ती है कि वो कहते हैं कि जी इससे घर के घर तबाह हो जाते हैं. वेरी अनफॉर्चुनेट के यहाँ पे हमारे फेथ हीलर्स कहते हैं कि जी बे से नाम बनता है आपका, जिसने आपके घर तबाह किया. अब होता कि बे से नाम शाम तो कोई नहीं, तो घर में फैमिली में किसी का भी बे से नाम बनता है, वो जाके कहते हैं अच्छा जी बे से फलां नाम है, पता नहीं बेचारी कौन होती है, और वो जी उनके आड़े हथे आ जाती है, और वहां से बे से जीम और जीम से शीन की कहानी शुरू हो जाती है. एंड दे होल सर्कल स्टार्ट्स एंड दे स्पॉइल द लाइफ ऑफ अ पर्सन. फॉल्टी assumption, तावीज उन्होंने कर दिया, फिर उनपे एक और चीजें ज्यादा बढ़ना शुरू कर जाती है, जो कॉन्फ्लिक्ट की सूरतें बनती हैं. So, although the general perception of mental illness has improved over the past decades, studies shows that stigma against mental illness is still powerful. कि कितनी भी changes आ गई हैं, लेकिन अभी भी stigma powerful है. Large stereotypes and lack of education, and that people tends to attach stigma to mental health condition at a far higher rate, और भी ज्यादा कर रहे हैं, than the other diseases and disabilities such as cancer, diabetes और heart disease से ज्यादा हमारा स्टिग्मा उनके साथ तो अटैच नहीं है. वो तो लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मेंटल हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा की वजह से कितने वर्स्ट हो जाते हैं तो उनको. सो स्टिग्मा अफेक्ट्स नॉट ओनली द नंबर सीकिंग ट्रीटमेंट, बल्कि हमें इसकी वजह से हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, वो भी इतने ज्यादा नहीं होते. So stigma and misinformation and misconceptions are obstacles for someone who is struggling with a mental health problem. कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, मिथ्स बहुत ज्यादा है. इट्स अफेक्ट द मेंटल हेल्थ इज अ ब्रॉड टॉपिक ऑन व्हिच वी कैन प्रोवाइड लॉट ऑफ फिगर्स एंड फैक्ट्स व्हिच कैन असिस्ट पीपल इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग. कल्चर इज द इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रूटेड फैक्टर अमंग ऑल ऑफ अबव डिस्क्राइब फैक्टर्स. कि हमारे कल्चरली चीजें जो एक्सेप्ट नहीं है, क्या है कि कल्चर में, मतलब ये बड़ा मैंने इससे पहले जिक्र किया कि कल्चर बहुत इफेक्ट करता है. कल्चर में है कुछ भी आप कर लें, नहीं ये जिन ही है, आप उसको कितनी दफा भी, मेरे पास पेशेंट जब आते हैं तो कहते हैं नहीं जी आपको नहीं पता, हम अपने पीर साहब के पास लेके जाएंगे तो वहाँ मरीज ठीक. तो आप जितनी भी कोशिश कर लें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ क्या है. अनदर मेंटल हेल्थ फैक्ट इज दैट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ. तो ये भी हमें लोगों को नहीं पता होता कि मेंटल हेल्थ कुछ और है. हम क्या करते हैं कि जिसकी इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी भी होती है उसे हम सादा बच्चा करार दे देते हैं. ठीक है. उसका भी हम इलाज वगैरह नहीं करते, उसको भी हम पीरो फकीरों के पास ले जाते हैं. फॉर गॉड सेक,
प्लीज उसका कुछ ना कुछ आप जरूर कीजिए। उसके आईक्यू टेस्ट को आगे मैं जाके बात करूंगी कि मेंटल इलनेस इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, मूड, थिंकिंग और इन सब चीजों को इफेक्ट कर रही होती है। तो बजाय आप उसको अगेन सादा बच्चा या करार दें या उसको कहीं फेथ हीलर के पास लेके जाए, यू नीड टू टेक द पर्सन टू दी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. It is essential to know about the facts and regarding mental health, as most of the people are following the misconception in this regard. So a person can be healthy only when he knows about the reality. तो आपको reality पता होगी तो तभी आप चीजों को जानेंगे, उसके myths के बारे में आपको पता चलेगा, तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. So awareness campaign must be raised in order to enlighten this main issues. Through this way we can produce a mental health literate society. ट्रीटमेंट मेंटल हेल्थ लाइक फिजिकल हेल्थ, इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझे जितना हम फिजिकल हेल्थ को समझते हैं. और जब हम इस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे तो डेफिनेटली हमारी चीजें भी बहुत ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाए. सो आई बिलीव that mental health is more important than even physical health. I see people survive and sometimes prosper instead of having physical handicap, but it is so difficult to survive happily without good mental health. I find it a privilege to be a helping hand, being a mental health professional and seeing smiles on my clients' face once they are on the road to the recovery. Steps, I'll be quickly few minutes आपके steps क्या होने चाहिए awareness के. We need to focus on mental health awareness, that what part we can play as a psychologist. We can arrange seminars, workshops, camps in the rural areas, जो हमारा soul healing का बहुत ज़्यादा program भी इंशाल्लाह ताला है near future में, for the awareness of the mental health issues and stigma attached, provide the accurate knowledge about mental health illness and their treatment, read about it, educate yourself about mental health and suicide risk, learn about the signs and symptoms, way to receive help in your area. Use of social media for the awareness is very effective mode. Mental health professionals play a role in making a linkage of mental health and psychosocial stresses and not consider mental health as a supernatural power like jinn. ये बहुत important point है. खुदा के लिए mental health professionals को पता होना चाहिए कि वो लिंकेज बनाएं मेंटल हेल्थ के बारे में, किसी स्ट्रेस की वजह से है, ताकि लोग फौरन ना पहुंच जाएं पीरों फकीरों के पास, बल्कि सीधे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास आएं. Learn the signs and symptoms of depression and anxiety. Learn what to do when someone threatens suicide. Volunteer in your community. Donate your time to help others. You'll boost your mental health as you work to help those in need. Talking about it is very important. Talk about the mental illness. Ask people how they are doing. Everyone को जो है वो accept कीजिए अगर खुदा न खास्ता वो इस illness में है, और आप अपने स्कूल में इनकरेज कीजिए बच्चों के स्कूलों में कि वो मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग हो. अनफॉर्चुनेटली वो हमारी स्क्रीनिंग नहीं होती है. बुलिंग है एट स्कूल है, वो इश्यूज हैं. टॉक अबाउट द फीलिंग्स, कीप योरसेल्फ एक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए. आप अच्छा खाएं, बैलेंस डाइट आप लोग लीजिए और एक्सरसाइज आप कीजिए. कीप इन टच विद योर लव्ड वंस, आस्क फॉर हेल्प जब भी कभी आपको हेल्प की जरूरत हो. none of us are superhuman, ठीक है. we all are sometimes get tired or overwhelmed by how we feel or when things don't go to plan, ठीक है. so if things are getting too much for you or you feel you can't cope, ask for help. Your family and friends may be able to offer help or are listening ear. so change एक होना चाहिए आपकी लाइफ में. गिव योर सेल्फ अ टाइम, अपने आप को भी टाइम दीजिए, यू ऑलवेज नीड इट. और केयर फॉर द अदर्स भी आपको करनी चाहिए. तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगी, रिलैक्स आप रहने की कोशिश कीजिए, एक्टिव आप रहने की कोशिश कीजिए, डाइट आप अच्छी लीजिए, गिव योर सेल्फ अ टाइम, गिव अदर्स टाइम एज वेल. थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. Thank you so much, ma'am. I जी, think एनी that क्वेश्चन? was that was the best conclusion that we could have had from all of the previous sessions. Thank you so much. Thanks again, ma'am. Audience से मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैम हमारे साथ हैं तो इस मौके का हम फायदा उठाना चाहते हैं. आप लोग अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज रेज हैंड करिए या फिर चैट में भेज दीजिए. We'll be having 4 or 5 questions. आपने अपना हैंड. जी How can we जी. avoid forgetting the content while taking exam due to stress? I didn't get you. Which sort of content? क्या? How do you? I think ma'am I think इनका मतलब है कि जी. एग्जाम करते हुए अगर आपको भूल जाए तो उसके लिए कोई टेक्निक्स बता दें जो आपने याद किया वो आपको भूल सॉरी, जाए.
देखिए अभी आई एम सो सॉरी, एग्जाम करते हुए लाइकली चांसेस कि आपने बहुत अच्छा याद नहीं किया हुआ वन थिंग, या आपने रट्टा लगाया है। यहाँ पे मैं एक और बड़ी मजे की बात बताऊं कि ये दफा ना साइकोलॉजिस्ट को ये समझा जाता है कि जादूगर है। जिसका भी सवाल है आई एम सॉरी, अगर आप सवाल वहां करते हुए भूल गए तो आई एम सॉरी, आपने बहुत अच्छा याद नहीं किया हुआ। और अगर आपने याद किया उसमें हम कुछ नहीं, हाँ थोड़ा सा हम जरूर ये मैपिंग होती है ना आपकी, लाइक फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्रामिंग होती है, आपने चीज चीज याद की, अगर बाकी आपने अच्छा याद की, भूल गए तो यू गो बैक टू योर सिलेबस क्वेश्चन जहाँ से आपने याद किया होता है, थोड़ा सा आपका इमेज एक होता है, वो अगर आपको वहां से याद आ जाता है तो आपके दिमाग में बैठा होता है, तो यू कैन आंसर, आप उसको कंटिन्यू अपनी मेमोरी को वहां से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। ये डॉक्टर आतिफ सईद हैं, डायरेक्टर सम, इनका दे लीजिए क्वेश्चन, माइक पे शक इनका खोल दें। जी डॉक्टर आतिफ सईद, इफ यू कैन हियर अस, आप अपना माइक बेशक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। देन डॉक्टर महमूदुर रहमान का भी क्वेश्चन है इनके बाद, या अपना ये माइक म्यूट करके हमसे क्वेश्चन हमें अनम्यूट करके दे दें, इफ नॉट तो इन राइटिंग दे दें। एंड सेम विद डॉक्टर महमूदुर रहमान भी अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं, योर माइक इज अनम्यूट। We have just 7 minutes left. I would request you all please अपने questions theories भेजें या पूछ लें। ठीक है। डॉक्टर महमूद, हाँ, क्वेश्चन यही है कि डॉक्टर सोल के हवाले से बात कुछ कम हुई है, तो इसमें यह है कि हमें इस पे भी बात करनी चाहिए कि इट इज बियॉन्ड रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन इसमें हम इमोशन या साइकोलॉजी या माइंड पे भी तो बात कर रहे हैं, लेकिन सोल को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एग्जैक्टली यू आर राइट। इनफैक्ट साइकोलॉजी के इतने ह्यूज टॉपिक हैं कि अगर हम लेना शुरू कर दें तो उस पर एक सेपरेट लेक्चर होता है। ठीक है, तो बजाय कि हम दो कंसेप्ट्स को इंटरमिंगल अगर हम करेंगे तो वो शायद हो सकता है अपने ऑडियंस को कंफ्यूज ना कर पाए। तो ऑफ कोर्स योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड। तो जरूर हम सोल पे, सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट उस पर हमें काम करना होता है। मैं समझती हूँ कि जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी सोल इज इन्वॉल्व। आपकी सोल ठीक होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी, और उस पर तो हमारी डेफिनेटली वी नीड टू सीक अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। जब भी हमारे ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो वी नीड टू एड्रेस दिस ऑल। अभी तो हम कॉजेशन पे बात कर रहे थे, अभी तो हम अवेयरनेस पे बात कर रहे थे, और अवेयरनेस में बहुत सी डोमेन्स है सर। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टू कवर ऑल दैट डोमेन्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो इंशाल्लाह ताला सून हम इनको जो है आपके इस कंसर्न को हमने सुना, और विल बी कवरिंग दिस टॉपिक एज वेल। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। माही कुमेल हैं, ये कौन है? ये कुछ पूछना जी मैम, चाह रही हैं? माहिर इनका कामिल, माइक। माहिर कामिल। जी सॉरी जी सॉरी जी, बताइए, पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैम बस एक छोटी सी। वन एट अ टाइम। जी 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 बेटा मैम, बोलिए। बस ये टिप बता दें कि अगर हम बार बार मोटिवेशन लूज करते हैं तो उसको दोबारा से रीगेन कैसे किया जाए। एक तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगी। बहुत से लोग इसको कहते हैं, मैं यहाँ पे कहूंगी टिप, वी शुड नॉट यूज द वर्ड टिप। टिप जो है वो टिप नहीं होती कभी भी, ये टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। मोटिवेशन लूज को आपको बूस्ट अप अपने आप को करना पड़ता है। बहुत सी चीजों पे कि हम कहते हैं कि जस्ट गिव अस जस्ट साइकोलॉजिकल हेल्थ टिप्स, तो ऐसा नहीं है। इट इज अ साइंस, साइंटिफिक चीज है, इसको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है, इन डेप्थ हमने इसको बताना पड़ता है। तो वो इसके जो आपने कहा ना मोटिवेशन लूज करते हैं, यू हैव टू टेल योरसेल्फ यू कैन डू। डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने आप को कोई भी काम आपने करना है तो आपको लूज कर रहे हैं अपने हालात की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से, या किसी भी वजह से, तो आपने एक दफा डिटर्मिन होना है कि आपने ये करना ही करना है। और जब आप डिटर्मिन हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप कर लेते हैं। यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ कि आपने ये काम करना है, और आपकी हर्डल्स आएंगी लाइफ में, लेकिन आपने जब करना है तो आपने करना है। ये आपने यू हैव टू गिव अ मैसेज टू योरसेल्फ, यू हैव टू डू इट। वंस यू मेक अप योर माइंड, तो मैं समझती हूँ इंशाल्लाह ताला अनसर्टेनिटी है, हिंड्रेंसेस है, लेकिन आपने अपने आप को वंस मैसेज दे दिया है, यू विल मूव ऑन इंशाल्लाह हमेशा। थैंक यू जी मैम। नेक्स्ट। थैंक यू मैम। डू वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारे पास टाइम भी कम रह गया। आतिफ जी सर बोलिए। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा लेक्चर था, वेरी कम्प्रिहेंसिव लेक्चर था, एंड बड़ा कम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने सारे पॉइंट कवर किया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एम्फेसिस अगर पेशेंट्स के बारे में, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, दोनों मेरे वो स्पेशलिटी हैं। तो ट्रीटमेंट के हवाले से जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो अक्सर देखा है कि साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट को
फॉर द टाइम बीइंग भी, और कुछ दिनों के लिए जो स्टॉप करा देते हैं, कहते हैं नहीं आप दवाइयाँ सारी बंद कर दें। तो कुछ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स ऐसी होती है जो कि सडनली आप स्टॉप नहीं कर सकते, उनको ग्रेजुअली टेपर ऑफ, जिससे हम कहते हैं ग्रेजुअली उनकी डोज को Agreed. कम करके स्टॉप करना। Agreed. तो इसके बारे में कुछ मुझे बताएं Agreed. कि आपकी Sir, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या होती sure. है ये जो Sir, ट्रीटमेंट होती है जो एंटी sir, आपके पास। I personally, चूंकि मैं जी जी सर, मैं अपने बारे में बात करना चाहूंगी। आई थिंक कि मैंने कभी किसी, या हम क्यों, क्योंकि टेपर ऑफ हम लोग करते हैं सर, यानी कि जो साइकेट्रिस्ट हैज टू टेपर ऑफ द मेडिकेशन, उन्हें शुरू कराइए तो एक उसका कोई कोर्स होगा। तो कोई भी साइकोलॉजिस्ट अगर ये कहते हैं कि फौरन दवाइयां बंद कर दो, दिस इज नॉट क्या कहना चाहिए, वाइज डिसीजन। कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट दवाइयां बंद नहीं कराता। हाँ, गुड एंड बैड हर जगह होते हैं, साइकेट्रिक की डोमेन में भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट में भी होते हैं, I'm सॉरी। तो वो अगर बंद कराते हैं तो इट्स बिल्कुल पर्सनल एक्ट है, लेकिन मैं पर्सनली इसको नहीं इंडोर्स करूंगी कि आप किसी की दवाइयां शुरू। आई डोंट इंटरफेयर इन एनीबॉडीज ट्रीटमेंट, आई डोंट लाइक इंटरफेरेंस इन माय ट्रीटमेंट। तो सडन दवाइयां बंद कराना कुड बी अ शॉकिंग फॉर द क्लाइंट, और रादर क्या चाहिए कि उसकी मजीद प्रॉब्लम बढ़ाने की बात है कि उसको विड्रॉल इफेक्ट हो सकते हैं, उसको रिलैप्स हो सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इमीडिएटली दवाइयां बंद कराना मुनासिब है। You have to evaluate. There is should be a bonding with teamwork between the psychiatrist and the psychologist, and the psychiatrist should stop medication जब भी कर रही हो, psychologist should not. जी, anybody else? Sir, I hope I've answered your question. Yes, ma'am. Sipa, can you hear me? Yes, ma'am. I think the query has Sir, भी been सुनिए। solved. बाकी जो questions I would like to say it again कि जब ये lecture Facebook पे upload होगा, आप लोग connected रहिएगा, वहाँ पे अपने questions पूछें, हम ज़रूर उनका answer करेंगे, जितने queries का answer कर सके। And यहाँ पे I would just like to end the lecture क्योंकि we have a very short time. मैम की बात के इस lecture को जितना, इस topic को जितना elaborate किया जाए, time उतना ज़्यादा लग सकता है, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम हमें यहाँ पे लेक्चर को एंड करना पड़ेगा। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे, इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना अच्छा लेक्चर बताया। हो पेरेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, मेंटल हेल्थ के हवाले से सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आई लाइक टू एंड द सेशन हियर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।